Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to episode 6 of season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, as you all know that we have chosen a very important book of an influential author named Jim Rohn. The book, The 5 Major Pieces to the Life Puzzle, in which we are going to discuss the 5 most important pieces in the formation of your life, personal philosophy, attitude, activity, results and the lifestyle. So in the previous episodes, we have in detail discussed about the formation of your personal philosophy, and we have also learned that how much is it important to incorporate a sound personal philosophy into your life in order to become a person you have ever dreamt of. But in the previous 5th episode, we have started the second chapter of this book, Attitude, जिसके अंदर हमने in detail discuss किया था कि why is it important to incorporate a positive attitude, and why is it important to look around your influences, and why also is it important to look into the deeper side of your socialization. But we have ended over a very important concept that all things must be finished before they can be started. So right now I am going to start with a very important concept in the formation of your future. So here we will be discussing about another very important concept named how to design a better future. आपको याद है हमने प्रीवियस एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की थी दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डिक्टेट योर माइंड सम आवर्स बिफोर व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू. सपोज इस टाइम में बैठ के यहाँ पर एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ. एपिसोड की रिकॉर्डिंग से पहले अगर मैंने रात के टाइम अपने आपको मेंटल पेप टॉक्स के थ्रू थोड़े सिग्नल्स देना शुरू किए दैट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस इशू एंड आई विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशंस एंड वोकैबुलरीज आई एम गोना यूज इनटू माय बुक एंड दिस काइंड ऑफ रेफरेंसेस आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन माय प्रेजेंटेशन. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दे आर गिविंग एन अलार्मिंग सिग्नल इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड एट द राइट मोमेंट आपका माइंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है कि मैंने क्या करना है. So it is very much important to design a better future because it is also a emotional magic formula जिसके तहत आप कुछ insights को borrow कर रहे होते हैं. For example, if you are dictating your mind to do something important, तो आपको excitement होगी, आपके अंदर anticipation आएगी, आपके अंदर एक positive energy आएगी और आप अपने आप को prepare करने जा रहे होते हैं. तो ये जो preparation का phase होता है ये बहुत ज़्यादा important होता है और यहाँ पर आपकी एक चीज़ important role play कर रही होती है जो होती है आपके mind's eye. अल्लाह ताला ने हम सबको ब्लेसिंग से नवाजा होता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग इन टू अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ दैट यू कैन इमेजिन एंड फोरकास्ट योर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इमेजिनिंग योर फ्यूचर यू विल बी making up plans, you will be dwelling the negative energies, you will be incorporating a palette of positive insights into your personality. So all these things will be playing a pivotal role in the formation of your positive attitude. And if you are having a positive attitude, definitely you are going to have a very great lifestyle in your future life. तो एक बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फ्यूचर को डिज़ाइन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं यू मस्ट हैव टू पे अ प्राइस फॉर द फ्यूचर. हर चीज़ का एक प्राइस टैग होता है. जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप प्राइस टैग से ये चीज़ जज कर रहे होते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है. सो अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सॉरोज ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ ज़्यादा, तो इसका मतलब होता है कि एट द वेरी एंड अल्लाह ताला आपको उसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही फ्रूटफुल दे रहा होता है. सो योर फ्यूचर इज़ कैरिंग अ प्राइस टैग. और प्राइस टैग क्या होता है? You have to incorporate a lot of labor into whatever you are going to do. Secondly, you have to be disciplined. For example, अगर आपने छोटे छोटे disciplines को practice करना नहीं शुरू किया तो आप एक ऐसी triumphs को achieve नहीं कर सकते जो disciplines का accumulation होती है. Thirdly, most importantly, you have to be consistent because without consistent and persistent actions आप एक determined person नहीं बन सकते. And most importantly, burning desires. आपको पता है कभी कभी हमारे अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो शायद चाइल्डिश होती हैं, शायद अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, इनसिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर कंज्यूम कर रहे होते हैं और हम एंड कहाँ कर रहे होते हैं? जहाँ पर हमारे पास वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लोग जमा हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. सो यू हैव टू क्रॉस अ रोड ऑफ बर्निंग डिज़ायर्स एट विच यू नीड टू डिसाइड what kind of desires are going to be incorporated into your personality and what kind of desires are you going to quit from your life. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिंसियरिटी होती है क्योंकि सिंसियरिटी इज़ द मेजर कॉर्नरस्टोन इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पर्सनल एटीट्यूड. अगर आप सिंसियर नहीं हैं अपने आप के साथ, अगर आप सिंसियर नहीं हैं अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ, तो आप कभी भी पॉजिटिव थॉट्स को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वीव अपॉन नहीं कर पाते. और जब आप ऐसा करना शुरू हो जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, कि जब आप बार बार कामयाबियाँ हासिल करना शुरू कर देते हैं तो आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. आपको लगता है आई
am meant for these successes, so I am going to incorporate all these things again and again into my life so that I will be able to achieve another time. तो ये जो मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन होता है ये लेवल तब अचीव होता है जब आप अपने आप को स्मॉल डिसिप्लिन्स का आदी कर लेते हैं और स्मॉल डिसिप्लिन इतने कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो परसिस्टेंट बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप रोड टू ट्रायम्फ पर होते हैं तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन नॉट सक्सीड बाय योर सेल्फ, यू हैव टू लिव अराउंड द पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, you have to share your success stories over the people who are providing you a back system. For example, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके मेंटोर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर कभी भी वो एनर्जी डेवलप नहीं करती है, वो एनर्जी डेवलप नहीं होती है। तो आप अपने एसोसिएशंस और डिसएसोसिएशंस की तरफ देखें, बिकॉज no man is an island, we all are accumulation of people living over an island and we are making a great creature. अगर आप अकेले रहना शुरू कर देंगे तो आप अकेले डिप्रेसिव हो जाएंगे, एंजाइटी आपको ओवरलैप कर लेगी और एट द एंड आप कभी भी एक्शन लेने के काबिल नहीं रहते। सो यू हैव टू सराउंड अराउंड द पीपल हु आर वेरी इन्फ्लुएंसिव फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड फॉर योर ट्रेड्स। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी इन्फ्लुएंसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डेवलप नहीं करते हैं, तो जब आप उसको स्ट्रॉन्गर वे में डेवलप नहीं कर रहे होते हैं तो वो चीज़ लेटर इन लाइफ आपके लिए बैड इम्प्लीकेशंस को ब्रिंग आउट कर रही होती है। अब सबसे पहले जब आप रोड टू सक्सेस की तरफ जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इज सेल्फ एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन, सेल्फ वर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए बड़ी जल्दी क्लैप करते हैं, हम अपने लिए क्लैप नहीं कर रहे होते हैं, हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी से बड़े इंस्पायर हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज के अंदर यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, आइदर डेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन। बट कभी कभी इंस्पिरेशन की अगर ओवरडोजेज हो जाती है ना, तो आप बस लोगों को इंस्पायर ही करते रह जाते हैं, लोगों से इंस्पायर होते रह जाते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते। सो यू हैव टू डू व्हाट इज दैट, यू नीड टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू हैव डन ग्रेट इनटू योर पास्ट। आप अपने फेलियर से सीखें, आप उनको एज अ स्कूल यूज करें, एज अ वेपन यूज मत करें, क्योंकि अगर आप अपने फेलियर से सीख नहीं रहे, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो एक टाइम आता है कि आप अपने आप से बोर होना शुरू हो जाते हैं, आपको अपनी सक्सेसेस ज़्यादा देर तक एंटरटेन नहीं कर रही होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने फेयर की बाउंड्रीज को ब्रीच आउट नहीं कर पाते, आपको लगता है दैट पर्सन इज एबल टू डू दैट, आई एम नॉट एबल। वो ऐसा होता है क्योंकि कभी आपने कोशिश नहीं की होती है, आपने अपने कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक नहीं किया होता है, आपने अपने मेंटल डिसेबिलिटीज़ को अपने अंदर एम्बेड इतना स्ट्रांगली कर लिया होता है कि आपको लगता है आई एम मेड टू डू दिस स्मॉलर जॉब वट एवर आई एम हेयर, तो मैं इसी के लिए पैदा हुआ, मैं इसी को करता रहूँगा। ऐसा नहीं होता है, आप सबको अल्लाह ताला ने इक्वल पैदा किया है, आप सबको अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया है। नेल्सन मंडेला को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we are educated beyond measures. It is our light, not our darkness, that frightens us. Actually, we ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, fabulous and talented? The thing is, who you are not to be that. You all are the child of Allah. You all are born equally, you all are born in a unique manner. So the thing is that you need to explore yourself by a discovery process, that which you can do best, and after this process you will be able to appreciate yourself, you will be able to ask yourself that you can be a risk taker, you can breach the boundary of the fear, you can do something whatever the next person is going to do. But remember, you have to draw the boundaries, you have to draw a cultural structure कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट होता है कि आपने अपना नॉलेज और अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट की है, कितनी ज़्यादा गैदर की है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी एक पैलेट की तरह होती है, पैलेट के ऊपर जब एक आर्टिस्ट कलर पेंट करने लगता है तो उसके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं। एक टाइम आता है जब उसके पास कलर्स का शॉर्टेज हो जाता है तो उसका जो एक पूरा मुजस्मा होता है वो इनकम्प्लीट लगने लगता है। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो दीज मेंटल कलर्ड पीपल। अगर आपके अंदर एक चीज़ की कमी होती है, आपने खुद से क्रिएट की है नर्चरली, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आपको कलरलेस लगना शुरू हो जाती है। तो अपनी पैलेट को रंगों से भरना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप रंगों से भरना शुरू करेंगे ना, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और उन पॉजिटिव वाइब्स से आप अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते ISP के ऑफिशियल पेज को विजिट करना मत भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।